عشاء کی نماز میں بتائیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کو 12 رکعت ہوتی ہیں. عشاء میں 12 رکعت ہوتی ہیں؟ نہیں 12 رکعت کہاں ہوتی ہیں عشاء میں. 4 اور 4 امام پڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے, اللہ کا شکر گزار. آپ سے اسلامک دینی سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے. اجازت ہے؟ اجازت ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ جس نبی کی ہم اور آپ امت میں ہیں اس نبی کی عمر کتنی ہوئی؟ شاید 800 سال ہو گئی ہوگی. اپنے نبی کی 800 سال ہوئی. 800 سال عمر ہوئی؟ نہیں 800 سال نہیں ہوئی ہے. سوچ کے بتائیے. 900 سال ہو گئی ہوگی. 900 سال؟ نہیں 900 سال تو اور نبیوں کی ہوئی. ہمارے نبی کی کتنی ہوئی؟ جس نبی کی ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی کے بارے میں 1400 سال ہو گئے. 1400 سال؟ نہیں دیکھو ہمارے نبی کی عمر جو ہے 63 سال ہوئی. 63 سال ہو گئی. 63 سال ہوئی. اور اچھا ہم یہ بتائیے کہ ہم لوگ کس نبی کی امت میں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. تو اس نبی کے بارے میں معلومات بھی تو رکھیے آپ. جس نبی کی آپ امت میں ہو, جس نبی نے آپ کو کلمہ پڑھایا. پڑھے لکھے نہیں ہیں, معلوم نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں, اگر نہیں معلوم ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کو بتانے کے لیے ہی آئے ہیں. اچھا ہے کہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کی جو ہے بیٹیاں کتنی تھیں؟ 3 بیٹی تھیں. 3 بیٹی. اچھا 3 بیٹیوں کے نام بتائیے. نام نہیں پتا. فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا نام پتا ہے. ہاں فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی ہیں. اچھا ہاں سب سے چھوٹی بیٹی. نہیں 3 بیٹیاں نہیں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹی. ہاں 4 بیٹیوں کے نام ہم بتا رہے ہیں آپ کو. زینب, رقیہ, کلثوم, فاطمہ. سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ بتائیے کہ سید آل رسول کہاں سے چلے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سب چلے. امت سے چلے؟ ہاں. فاطمہ کی امت تھوڑے ہے. نہیں وہ رسول کے. رسول کی امت میں سبھی لوگ ہیں. مگر ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ سید آل رسول کن سے چلے؟ جیسے مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید لوگ سید اور آل رسول چلے. ہاں ہاں. اچھا پنجتن پاک کسے کہتے ہیں؟ مولا علی. مولا علی کو خالی پنجتن پاک کہتے ہیں؟ وہ حسن حسین. ہاں حسن حسین, مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 لوگ ملائے کے پنجتن پاک ہوئے. 5 ہوئے پنجتن پاک. ویسا کہاں. ہاں. اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی؟ نہیں پڑھ پاتے ہیں. جمعے بھی نہیں پڑھتے؟ ہاں جمعہ کے پڑھتے ہیں ضرور. پڑھتے ہیں 8 مطلب 8ویں دن پڑھتے ہیں. ہاں پڑھتے ہیں. کبھی ٹائم لگ جاتا تو پڑھتے ہیں. شام کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کی بھی پڑھ لیتے ہیں. مغرب کی پڑھ لیتے ہیں. اچھا مغرب کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ مغرب کی 7 رکعت ہے. 7 رکعت. اچھا 7 رکعتوں میں سنت کتنی ہے, فرض کتنی ہے اور نفل کتنی ہے؟ فرض 4 رکعت ہے. مغرب کی نماز میں جو ہے 4 رکعت فرض ہوتی ہیں. ہاں 4. مغرب کی نماز میں 4 رکعت کہاں فرض ہوتی ہیں؟ نہیں 4 رکعت مغرب میں. ہاں مغرب کی نماز میں 4 رکعت نہیں ہوتی ہیں. 12 رکعت. نہیں 7 ہی رکعت ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں, مگر 4 رکعت فرض نہیں ہوتی ہیں. 4 ہی ہوتی ہے. 4 رکعت فرض نہیں ہوتی ہیں, 3 رکعت فرض ہوتی ہیں. اچھا ہاں 3 رکعت. امام صاحب جو پڑھاتے ہیں وہ 3 رکعت فرض ہوتی ہے اور 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل. کتنی ہوئی؟ 4 اور 3 7 ہوئے. 7 رکعت ہوئی. اچھا جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو جمعے میں 14 کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جمعے کی نماز میں؟ 4 سنت 4 سنت ہو گئی ہو, پھر 4 سنت 2 جو ہے فرض ہوتی ہیں. ہاں جو امام پڑھاتا ہے وہ فرض ہوتی ہیں. اور پھر 4 رکعت سنت موقدہ ہاں ہوتی ہیں. اور پھر 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل ہوتی ہیں. اور اچھا فجر میں بتائیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں فجر کی نماز میں؟ فجر کی صبح کی جی جب فجر میں صبح اٹھا جاتا ہے 4 رکعت ہے. 4 رکعت, 2 رکعت سنت, 2 ہاں 2 رکعت فرض. ہاں 2 ماشاء اللہ. اچھا عشاء کی نماز میں بتائیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟
इसे 12 रकात होती है। ईशा में 12 रकात होती है? नहीं नहीं, 12 रकात कहाँ होती है ईशा में? 4 और 4 इमाम पढ़ाते हैं। हाँ, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, हाँ, और 4 8 और 4 12 हो गया। नहीं नहीं, 12 रकात जोहर में होती हैं। अच्छा जो हाँ, 17 रकातें होती हैं ईशा की 17 नमाज रकात, में। हाँ, आप पढ़ते हैं ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है। नहीं पढ़ते। देखो, नमाज पढ़िए। नमाज एक टाइम की छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, मालूम है आपको? बहुत बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। गलत बात है। देखिए, सबसे पहले क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा, बताइए आप? नमाज का। नमाज का किया जाएगा, और नमाज ही आप छोड़ देते हैं। एक टाइम की नमाज को छोड़ना 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में इंसान जलेगा। अल्लाह इतना अकबर। बड़ा जो अज़ाब है एक टाइम की नमाज को छोड़ना। अल्लाह अकबर। और आपने बचपन से लेके 55 के हो गए, आप कितनी नमाजें छोड़ दी? जवानी पर बहुत पढ़ी हमने, जवानी में पढ़ी है? बहुत पढ़ी। तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप ये इस काम में ऐसे लगे हुए हैं, नहीं पढ़ पाते। नहीं, देखिए, आप ई रिक्शा चलाते हैं, हाँ। हैं? तो ई रिक्शा चलाते हैं, जहाँ पे नमाज का टाइम हो जाए वहाँ मस्जिद मिल जाए, वहाँ नमाज आप पढ़ लो, अदा कर लो। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट या ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं? 5 से 10 है कि नहीं? मिनट, अल्लाह के हाँ। आगे झुकने में 5 मिनट लगते हैं। हाँ, हैं? बस इससे ज़्यादा। और आपके रिक्स में बरकत होएगी, बेशक आपकी होगा। कमाई में बरकत होएगी। नाम लेके हैं? चलो तो इंशाल्लाह बरकत है। हाँ, तो फिर भी आप नमाज से दूर हैं, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का ही सवाल किया जाएगा। सवाल किया जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद में कुर्बानी सबसे पहले किस नबी ने की? कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है करना? ये नहीं मालूम है। बकरा ईद तो कुर्बानी नहीं करते आप क्या? हाँ, करते हैं। तो किसके करते हैं? ये तो मालूम होना चाहिए। नाम नहीं आ रहा, निकलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी अल्लाह की राह में जो है कुर्बान करने के लिए अपने साथ में लेके गए थे, तो आपने लिटारा, तो वहाँ पे अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आई। तो अल्लाह ने का हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि सबसे अजीज़, सबसे अच्छी जो चीज़ तुम्हें पसंद हो वो हमारी राह में कुर्बान करो। तो वो बेटे को सबसे ज़्यादा चाहते थे, तो बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके चल दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह की बारगाह में। और वहाँ पे अल्लाह ने जब इम्तिहान में वो पास होएगा, तो अल्लाह ने जब जो है वहाँ पे दुम्बा उतार दिया, दुम्बा की कुर्बानी हुई। जब से चली आ रही है कुर्बानी, तो ये अमल जो है अल्लाह को बहुत पसंद आया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की। तो जब हमारे नबी ने कुर्बानी की, तो आज उनकी उम्मत कुर्बानी कर रही है। बेशक कर रही है कि नहीं? हाँ, सब कर रहे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कुर्बानी करना, बेशक सुन्नत है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कुर्बानी करना है क्या? सवाब मिलता है। हाँ, नहीं, वाजिब है। हाँ, वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। काम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो ये अमल जो है हमारे लिए सुन्नत भी हो गया। सुन्नत हो है गया। कि नहीं? हाँ, जो है? नबी कर गए, हाँ, जो नबी ने किया वो हमारा काम करूंगा हाँ, तो वो सुन्नत है, सुन्नत हो गया। हाँ, सवाब का काम है ना। बेशक, हाँ। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, नमाज 5 टाइम की पढ़िए। इंशाअल्लाह। कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज पूछी नमाज का जाएगी, है कि जिक्र नहीं? होगी, जिक्र और बच्चों को इल्म दीन सिखाइए। बेशक इल्म दीन बच्चों को आप जरूर, सिखाएंगे, जरूर तो आपके बच्चे आपके लिए बवाले जान बुढ़ापे में नहीं बनेंगे। बेशक है कि नहीं? सिखाएंगे। क्यों कल बीबी आ जाती है, तो बच्चे जो है माँ बाप को बुढ़ापे में बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, आजकल चल रहा है। कल यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए बच्चों को भी इल्म दिन सिखाओ, और आप भी इल्म दिन सीखो, कि ताकि आपको नमाज के बारे में, अपने नबी के बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में मालूमात हो। आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन आपसे सवाल आपका रब करेगा, आपके नबी करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? वहाँ फरिश्ते ने कहा कि नहीं बोल पाएगा कोई। फिर जो मालूम नहीं नहीं, होगा अगर तो अच्छे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बता देंगे। हाँ। मगर आप जब यहाँ करोगे नहीं, तो बता नहीं पाओगे वहाँ। नहीं क्यों? बता जब पाएंगे। हमें नहीं आप बता पा रहे हो, तो वहाँ कहाँ बता पाओगे? नहीं बता क्यों? पाएंगे। आपको मालूमात ही नहीं है, नहीं। है नहीं? याद तो करना इसलिए- जरूरी है। इसलिए अपने जो आपके मस्जिद के पेश इमाम हैं, वहाँ उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए, फिर आपको वो बताएंगे। बेशक बताएंगे, कि नहीं? बताएंगे। मुफ्ती साहब के जाएंगे भी हाँ, पूछेंगे। मुफ्ती साहब से पूछा करो कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि जो है नमाज में रकातें कितनी हैं, नमाज में पढ़ा क्या जाता है। अच्छा, ये बताइए, नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नियत बांधने के बाद में सना पढ़ी जाती है, वो सुनाइए। सना थोड़ा याद दिवाएंगे। सना सुबहान का अल्लाह सुबहान का अल्लाहुम्मा बाब हमद का बता अला जद्दो वला इला गैरों का। नहीं, गलत सुना रहे आप। हाँ। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक।